شجاعت کے سول اسپتال میں مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ موسمی تبدیلی سے ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائیڈ کے مریضوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ مریضوں کو احتیاطی اقدامات اٹھا کر بچایا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مصور انصاری سے۔ موسمی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہی موسمی بخار کا جو ہے وہ اپنے عروج پہ آئے ہیں اور مختلف قسم کے بخار اس ٹائم دیکھنے کو مل رہے ہیں، اسی حوالے سے سب سے زیادہ جو رپورٹ کیا جا رہا ہے شجاع آباد میں ڈینگی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ اور چیسٹ انفیکشن کا بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ شجاع آباد سول اسپتال کے جنرل فزیشین موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ حالیہ بارشوں کے بعد جیسا کہ موسم میں تبدیلی آئی ہے تو ہمارے پاس کھانسی، نزلہ، بخار، یہ گلے کے انفیکشن اور پھیپھڑوں کے انفیکشن اور ڈسٹ الرجی کے انفیکشن کے ساتھ مریض زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیریا، ڈینگی اور ٹائیفائڈ بخار کے مریض بھی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی بیسک وجہ انوائرمنٹ میں جیسے ڈسٹ، یہ خاکہ، دھواں، مٹی، خاکہ، اور اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جیسے مچھروں میں اضافہ ہوا ہے، اس وجہ سے ملیریا اور ڈینگی کا مرض جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ان سے بچنا چاہیے اور ہمارے ماحول میں موجود جو مچھر ہیں ان کو جو ہے نا بر وقت جو ہے نا ان کو خاتمہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، مچھر سے بچاؤ کے لیے بھی اپنی حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے اور شام کے وقت ظاہر سی بات ہے کہ جالی والے دروازوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع بھی کرتے ہوئے جو موسمی تبدیلی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بھی متوازن کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ یہ سونے کی قیمت میں حیران کن اضافہ۔ سونا ملک کی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران سونے کی فی تولہ قیمت میں 3000 روپے کا اضافہ۔ 24 کیرٹ سونا 2,74,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان سے، جہاں سونے کی قیمت میں حیران کن اضافہ۔ سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 3000 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ 24 کیرٹ سونا 2,74,000 روپے فی تولہ ہو گیا، جبکہ 22 کیرٹ سونا کی فی تولہ قیمت 2,51,000 روپے ہو گئی ہے۔ 24 کیرٹ سونے کی فی گرام قیمت 23,500 روپے ہوگی۔ 22 کیرٹ سونے کی فی گرام قیمت 21,500 روپے ہوگی۔ سونے کی قیمت میں مزید اضافے کا رجحان جاری ہے۔ سونے کی بڑھتی قیمتیں، سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 3000 روپے کا اضافہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، تعمیراتی سامان سستا ہو گیا۔ ملتان میں سیمنٹ 50 روپے فی بوری سستا 1450 روپے کا ہو گیا۔ سریا 5 روپے سے 10 روپے کلو تک سستا ہوا۔ تاجر کہتے ہیں تعمیراتی سامان کا سستا ہونا خوش آئند ہے۔ تعمیراتی سامان سستا ہونے سے کاروبار بہتر ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فراز رمضان سے۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باعث تعمیراتی سامان بھی سستا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ بات کرتے چلیں تو سیمنٹ کے بیگ میں 50 روپے تک کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ سیمنٹ کا بیگ جو ہے وہ 1500 روپے سے کم ہو کر 1450 روپے کا ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سریا بھی جو ہے وہ 5 سے 6 روپے فی کلو جو ہے وہ سستا ہوا ہے۔ اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ تاجر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ظفر صاحب بتائیے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور تعمیراتی سامان بھی سستا ہونا شروع ہو چکا ہے، کتنا سستا ہوا ہے؟ کون سی چیزیں سستی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا جو تعمیراتی سامان ہے نا جی، جو اس میں سیمنٹ ہے، وہ مختلف برانڈ جو ہیں وہ 50 سے لے کے 70 روپے فی بوری تک سستے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح جو سریا ہے وہ 5 روپے سے لے کے 8-10 روپے فی کلو سستا ہو چکا ہے، یعنی 5000 روپے سے لے کے 8000 روپے فی ٹن تک سستا ہو چکا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ لیکن چونکہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی، عوام کی توقع تھی کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات اپنی پرانی نرخوں پہ آ جائیں گا 150 روپے تک، تو پھر اس میں بہت کمی ہوگی، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت کم از کم اس کو 200 روپے کی حد تک لے آئے، تاکہ اس سے نہ صرف جو ہے وہ تعمیراتی سامان میں ارزاں قیمت پہ ملے گا عوام کو، بلکہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس میں بھی فرق پڑے گا، وہ بھی عوام کو سستے داموں ملیں گی۔ اچھا ظفر صاحب، جب ریٹ زیادہ تھے تعمیراتی سامان کے تب کاروبار کی کیا صورتحال تھی، اور اب آنے والے دنوں میں کاروبار کی کیا صورتحال ہوگی، اس حوالے سے کیا جی ہم اس بارے میں بڑا پازیٹیو ہمارا جو ہے نا سوچ ہے کہ اتنا کم ہونے سے بھی کاروبار جو پہلے بالکل ہی نچلی سطح تک جا چکی تھی سیل، اب وہ اس میں تھوڑی سی بہتری آئے گی، اور جیسے ہی ریٹ کم ہونا شروع ہوتے ہیں تو عوام کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ آج اگر 10 روپے کم ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلے 15 میں جو ہے وہ 5-10 مزید بھی کم ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو عوام کی یہ آس اور امید
तोड़नी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा तो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस तामीराती सामान भी जो है वो सस्ता हुआ है। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए 200 रुपये लीटर तक पेट्रोल जो है वो मुकर्रर कर दे और इससे जो है वो कारोबारों की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। पेंशन तरामीम और सरकारी स्कूलों के निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट प्रेस के सामने असातिज़ा का एहतजाज। सदर यूनियन अहमद शेर खान का कहना था कि हुकूमत को जालिमाना तरामीम नहीं करने देंगे। शहरी आबादी में मौजूद स्कूलों की निजकारी समझ से बाहर है। देहाती इलाकों में कम तादाद वाले स्कूलों की निजकारी की जाए। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असातिज़ा यूनियन के सदर अहमद शेर खान साहब और यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने असातिज़ा भी मौजूद हैं, दीगर एजुकेशन के जो अहलकारान हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है स्कूलों की निजकारी और पेंशन रूल्स में जो तरामीम की जा रही हैं उस हवाले से। आपसे इस हवाले से बात करते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि इतनी गर्मी में जब असातिज़ा बाहर निकले हैं तो इनके घर को समझो आग लगी हुई है। हमारे स्कूल निजकारी जो प्राइवेट किए जा रहे हैं, इसके अलावा लीव इनकैशमेंट जो लाखों का असातिज़ा को इस उम्र में नुकसान आ रहा है। और टाइम टेबल देखें, हफ्ते में लोग स्कूल खोलते हैं, इन्होंने 4 दिन हमारे स्कूल बंद कर दिए हैं। इसके अलावा आप स्कूल को निजकारी कर रहे हैं, वो प्राइवेट कर रहे हैं। भाई बताएं किस क्राइटेरिया के मुताबिक कर रहे हैं, कुछ बताएं तो सही। शहरी इलाकों के जो स्कूल हैं उनको भी प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे, क्या लाएअमल होगा? यहाँ से मियांवाली से उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आप चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं तो हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, उसमें यह है कि स्कूलों की निजकारी नहीं होगी, लीव इनकैशमेंट का कानून वापस लिया जाएगा। तो हम ये उनसे भरपूर मुतालबा करते हैं कि हमारे स्कूलों को प्राइवेटाइज ना किया जाए। जी, उनसे भरपूर मुतालबा किया जाता है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा अपने वादे को पूरा करें, क्योंकि उन्होंने माजी में जब असातिज़ा यूनियन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर में एहतजाज किए गए है तो वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की, वो अपने वादा पूरा करें, अदरवाइज असातिज़ा जो है सड़कों पर रहेंगे। और शुक्रिया अख्तर मजाद। और अब रुख करेंगे रहीम यार खान। महकमे सिविल डिफेंस में अफसरान और मुलाजमीन की खाली असामियों पर अरसा दराज से भर्तियां ना हो सकें। चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, इंस्ट्रक्टर ग्रेड 2 और 3 के अफसरान, बम डिस्पोजल टेक्नीशियन और सैनिटरी वर्कर की सीटें भी खाली पड़ी हैं। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा सिविल डिफेंस वतन अजीज और रहीम यार खान का एक अहम तरीन इदारा है, जहाँ इस इदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाना था और इसके साथ साथ जो अफसरान हैं उनकी भी जो सीटें हैं यहाँ पे मुकम्मल होनी थी और इसके साथ साथ जो स्टाफ है वो भी, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे वॉलंटियर्स काम करते हैं उनकी भी तादाद मुकम्मल होनी थी। तो उनकी तादाद मुकम्मल होने की बजाय जो है वो अफसरान और इसके साथ साथ जो स्टाफ है उनकी सीटें जो है वो अरसे दराज से खाली है। महकमा सिविल डिफेंस वो इदारा है पाकिस्तान के अहम तरीन के जो जंगी हालात में फराइज सर अंजाम देने के साथ साथ एक तकरीब में सिक्योरिटी के भी बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो फराइज सर अंजाम देते हैं। इतने अहम तरीन इदारे में जो है वो कई सालों से जो है वो अहम जो सीट है जिसमें चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस होती है वो अरसा दराज से खाली है और उसकी वजह से जहाँ पे मुख्तलिफ जो ऑर्डर्स जारी करने तो जो हिदायत जारी करनी होती है वो जो है कायम मकाम जो जो मुलाजमीन होते हैं वो जो है वो फराइज इंतजामी अमूर काफी मुतासर है। उसके अलावा इंस्ट्रक्टर ग्रेड 2 के जो है वो 3 अफसर सीटें भी ना होने की मसाइल है। बम डिस्पोजल टेक्नीशियन कोई बम की जो है वो मिलती है तो सबसे पहले बम टेक्नीशियन वहां पे पहुंचता है और फिर बम को जो है वो डिस्फ्यूज करता है, लेकिन वहां पर जो है इस अहम तरीन ओहदे की सीट खाली होने की वजह से जो है वो बहुत सारे फ्यूचर के भी जो मसाइल हैं वो सामने आ सकते हैं और इसके साथ साथ जो जिसमें सैनिटरी वर्कर होती है इसकी सीट जो है वो खाली है। अहम तरीन जो अफसरान हैं जो सीटें हैं वो खाली हैं जिसकी वजह से जहाँ पे महकमे की कारकर्दगी भी मुतासर हो रही है तो उसके साथ साथ शहरी भी जो है वो परेशान है। शहरियों का भी यही मुतालबा है आला हुकाम से कि महकमा सिविल डिफेंस की अहम तरीन सीटें हैं जो अफसरान की तैनाती नहीं हो सकी वो और इसके साथ मुलाजमीन की तैनाती को इस तौर पर मुकम्मल किया जा सके ताकि ना सिर्फ इदारे के जो इंतजामी अमूर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है बल्कि दीगर जो कारकर्दगी है वो बहतर से जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। आमिर भट्टी हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान। महकमे सिविल डिफेंस में अफसरान और मुलाजमीन की खाली असामियों पर अरसा दराज से भर्तियां ना हो सकें। चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस, इंस्ट्रक्टर ग्रेड 2 और 3 के अफसरान,
बम डिस्पोजल टेक्नीशियन और सैनिटरी वर्कर की सीटें भी खाली पड़ी हैं। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। एलपीजी की बढ़ती कीमत को बैग गेर लग गया। बहावलपुर शहर में एलपीजी की कीमत सरकारी निर्ख से भी कम होगी। मार्केट में एलपीजी की सरकारी निर्ख 247 की बजाय 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरियों ने कीमत में कमी को खुशैन करार दे दिया है। दुकानदारों का कीमत में इजाफे का इंदिया। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोइया हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा। देखिए जी, अमूमन महंगाई की बात की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें एलपीजी की कीमतों की तो पिछले दिनों काफ़ी इजाफा भी देखने में आया और मजमूई तौर पर देखा जाए तो एक हफ्ते के दौरान कीमतों में मुसलसल कमी होती नज़र आ रही है। और शहर भर में ओवरऑल देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 30 से 40 रुपये, जबकि बाज़ दुकानों पर 50 रुपये कमी देखने में आई है। इससे कबल हमने देखा था कि बहावलपुर शहर में एलपीजी जो कीमतें थी वो मुसलसल बढ़ती नज़र आ रही थी। और एक हफ्ते के दौरान अगर हम पिछले हफ्ते से उससे एक कबल हफ्ता की बात करते चलें तो 280 और 290 के दरमियान एलपीजी जो है वो फरोख्त की जा रही थी। लेकिन चूंकि अब जो एलपीजी है उसकी कीमतें सस्ती हो गई हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो आम शहरियों पर भी आएगा। रिक्शा ड्राइवर जो है उनको भी हमने कवर किया और उनके बारे में भी जो खदशात थे वो बताए थे कि किस तरह से रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं वो इससे मुतासर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि बहावलपुर शहर में एक जनरल परसेप्शन जो थी महंगाई के हवाले से, एलपीजी के हवाले से, वो अब थोड़ी सी तब्दील होती नजर आ रही है और एलपीजी की कीमतें जो है वो मुसलसल कम होती नजर आ रही हैं। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं और किस तरह से आप इस पूरे देखते हैं कीमतें कम होती हैं तो इम्पैक्ट जो है वो किन लोगों को जाता है। कि कीमतें कम होने से गरीब आवाम का फ़ायदा होता है। ये रिक्शा हजरात जो हैं, जो गरीब हजरात हैं, जिन्होंने किलो किलो 2-2 किलो गैस इस्तेमाल करनी है, इतनी महंगाई हुई है, बस इस वजह से उनको शुक्र है कि कोई कम हो रही है गैस, तो उनको फ़ायदा मिल रहा है। कम कीमतें कम होने से हमें भी फ़ायदा है, कुछ हमारी सेल्स भी बढ़ जाती हैं, लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फिर तो ये भी बताइएगा कि ये तो आपने अपनी बात कर दी। सेकंड, अगर सर्दी भी आती है तो तभी हम देखते हैं कि गैस नापीद भी होती है, महंगी भी होती है। तो अब मौसम भी सर्दी का आ रहा है, तो अब क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में गैस महंगी होगी या इसी तरह से मुस्तहकम रहेंगे रेट? नहीं, आने वाले दिनों में गैस महंगी होगी क्योंकि सर्दियों में ज़रूर इसका रेट बढ़ता ही बढ़ता है हर दफ़ा। वो तो है, इस दफ़ा भी जाएगा ऊपर, बल्कि अभी से ही जाना शुरू हो रहा है। कुछ नीचे आया था, अब लग रहा है कि दोबारा ऊपर जाएगा रेट। कितना ऊपर जाएगा? 20-30 रुपए किलो तो ऊपर जाएगा कम से कम। बिल्कुल जी, फिलहाल तो गैस की कीमतें जो हैं वो मुस्तहकम है, लेकिन आने वाले दिनों में गैस जो है वो ऊपर जाएगी। रिक्शा ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताएं, सस्ती गैस कितना फर्क पड़ता है रिक्शा ड्राइवर्स की जो ओवरऑल एक दिहाड़ी है उस पर? जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, अगर मज़ीद गैस और भी सस्ती हो जाए ना तो कारोबार अच्छा हो जाएगा। सवारी किराया नहीं देती, गैस बढ़ जाए सवारी वही किराया देती है, हमारा गुजारा नहीं होता। नेशनल गैस भी बहुत महंगी है, बिजली का बिल भी बड़ा महंगा आ रहा है। अब कुछ कमी नज़र आ रही है, मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल जी, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी खुशाइन करार दिया है और जो शहरी हैं उन्होंने भी खुशाइन करार दिया है कि जो रेट में कमी है उसका इम्पैक्ट तमाम अफराद पर पड़ेगा, माशरे पर पड़ेगा। और जैसे दुकानदार बता रहे थे कि फ़िलहाल तो गैस की कीमतें जो हैं वो कम होती नज़र आ रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में गैस जो है उसकी कीमतें जो हैं वो महंगी ज़रूर होंगी। और आलमी मार्केट की बात करते चलें तो एलपीजी की कीमतें जो हैं वो मुसलसल कम होती नज़र आ रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है दुकानदारों की तरफ से, डीलर्स की तरफ से कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट की वजह से भी एलपीजी सस्ती हुई है और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है एक दफ़ा फिर महंगी होगी। लेकिन फिलहाल बहावलपुर शहर में अगर देखा जाए जनरली तो 240 और 245 की तख्तियाँ जो हैं वो दोबारा से अवेज़ा कर दी गई हैं। जी, दुकानदारों का कीमत में इजाफे का भी इंदिया है। ताहिर जो हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। एलपीजी की बढ़ती कीमतों को बैग गेर लग गया है। बहावलपुर शहर में एलपीजी की कीमत सरकारी निर्ख से भी कम होगी। मार्केट में एलपीजी सरकारी निर्ख 247 के बजाय 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। खैरपुर टामे वाली इंतजामिया की मुबैना नाअहली, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइन के ढक्कन गायब। हासिलपुर को बहावलपुर से मिलाने वाले रोड पर खुले मैन होल्स हादसात का सबब बनने लगे। चुंगी नंबर 4 पर मैन रोड पर सीवरेज लाइन के ढक्कन गायब, इंतजामिया के लिए सवालिया निशान। मज़ीद जानते हैं मुश्ताक जोइया से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से जो सीवरेज लाइन के ढक्कन है वो गायब हो चुके हैं। मैं इस वक्त मेन रोड पर मौजूद हूँ जो बहावलपुर से हासिलपुर को मिलाता है। उस रोड पर जो सीवरेज की लाइन है उसके ढक्कन बिल्कुल गायब हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं इस बारे उनका क्या कहना है। जी भाई, बिल्कुल ही ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3-4 ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ
लेकिन जो भी है अमल दरामद कोई नहीं है इन्हों का। मेन रोड है देखो नाल सारे जरा ना 3-4 दफा ट्रैक्टर डिगे ने, मोटरसाइकिल डिगे ने, असी खीरी टायर चुक के रखे आया, पिछों कमेटी की तरफों कोई बंदा नहीं आया। कितने दिन से 10-15 दिन हो गया वो वाकया। आला हुकाम से क्या मुतालबा है? मुतालबे भी साढ़े पूरा करन आगे कोई नहीं आता, ना कोई चेक करने वाला है ना कोई करन। 2-4 दफा नुकसान हो गया आगे भी। जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इंतजामिया से हमारी अपील है, मेहरबानी करके इस ढक्कन को ऊपर बंद किया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल को भी हादसा हो चुके हैं और ट्रैक्टर को भी हादसा हो चुके हैं। तो आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके, वजीर आला से रिक्वेस्ट किया कि मेहरबानी करके इनके जो ढक्कन है वो बंद किए जाएँ ताकि हादसा होने से बचा जा सके। शुक्रिया मुश्ताक जोइया। और अब बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया की मुबैना नाअहली या गफलत। मुल्तान में 1.5 साल गुजरने के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना हो सकी। मुसाफिर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना होने पर रेलवे इंतजामिया से नाला। तमाम रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब की गई थी। मुसाफिर कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन की स्क्रीन से ट्रेन शेड्यूल का पता चल सकता था। अवाम के करोड़ों रुपए टिकट मशीनों और स्क्रीन पर लगा दिया है। मशीन फाल हो जाए तो टिकट बुकिंग ऑफिस पर रश खत्म हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीज़न की इंतज़ामिया की नाअहली या गफलत के बायस आज से 1.5 साल पहले मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर लगाई जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को जो है वो फाल नहीं किया जा सका। ये मेरे पीछे मेरा कैमरामैन अगर इरफान असलम आपको दिखा सके तो तकरीबन 1.5 साल पहले जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन और इसके साथ स्क्रीन नस्ब की गई थी। इसको मशीन को लगाने का मकसद ही यही था कि जो बुकिंग ऑफिस है टिकट का, वहाँ पर रश होने की वजह से ताकि मुसाफिर जो है वो अपनी ऑनलाइन टिकट जो है वो इस मशीन के थ्रू जो है वो बुक करवा सकें। इस मशीन से जो है वो ख़ास तौर पर जिन मुसाफिरों के पास ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट की सहूलत मौजूद होती थी, वो जो है इस मशीन से जो है वो अपनी आसानी से टिकट बुक करवा सकते थे। तकरीबन आज से 1.5 साल पहले ये पाकिस्तान के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर जो है वो करोड़ों रुपया लगाकर ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स नस्ब की गई थी। अब जो है वो तकरीबन 1.5 से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है इसको फाल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर जो है वो रेलवे इंतज़ामिया से नालाम भी दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ रेलवे इंतज़ामिया से और आला हुकाम से ये मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा ये जो आवाम का करोड़ों रुपया इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स पर लगाया गया है, इसको जो है वो फाल किया जा सके। दूसरी तरफ ये इसके साथ एक स्क्रीन भी नस्ब की गई थी जिस पर जो है वो मुसाफिरों को ये आगाही दी जानी थी कि जो ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से और जो ट्रेनों के अंदर बोगियाँ लगी हुई हैं, पैसेंजर्स की जो है वो कितने पैसेंजर जो है वो सफ़र कर रहे हैं, सीटों के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जानी थी। लंबी कतार में लाइनों में लग कर जो है वो मुसाफिर टिकट परचेज़ करते हैं, जो ट्रेनों पर सफ़र करते हैं, वो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को जो है वो जल्द से जल्द फाल किया जाए और स्क्रीन को भी, ताकि मुसाफिर इससे मुस्तफ़ीद हो सके और अपनी टिकट जो है वो बगैर किसी रश के और बगैर किसी ओवर देने के जो है वो ऑनलाइन यहाँ से बुक करवा सके। चपकला में वज़ीर आला का इनकलाबी प्रोग्राम सुथरा पंजाब, साइन बोर्ड्स तक सिर्फ महदूद। शहरी कहते हैं कि खानेवाल इंतजामिया की तरफ से साइन बोर्ड्स तो लगा दी गई हैं लेकिन कारकर्दगी सिफर है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं तजम्मुल हुसैन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शबकलां के नवाई गाँव 6869 पंद्रैल में मौजूद हूँ। हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ का जो इनकलाबी कदम है सुथरा पंजाब प्रोग्राम, यहाँ भी उसके दावे जो हैं बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। यहाँ साइन बोर्ड आवेज़ा कर दी गए हैं जिस पर यहाँ जो है घरों और कारोबार के लिए टैक्सेस भी यहाँ लिखे जा चुके हैं कि घर के लिए कितना टैक्स है और कारोबार के लिए कितना टैक्स है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जान लेते हैं। साडा जी कोई निज़ाम नहीं हो रहा, जगह जगह ढेर लगे हुए और उस तो इलावा हुकूमत ने टैक्स जो है नजायज़ लाया है। और अगर जिस आदमी के 5 मरले जगह है तो उसकी उन्होंने कनाल लिख दी है और जेड़ा बंदे का कारोबार है, छोटा कारोबार है तो ज़्यादा लिख दिता है। जिस बंदे को 5 मरले जगह है वो जनाब 2 जगह तो लिख दिता है। गलत बोर्ड इनवाइट किए ने। नहीं, ये किसने लिखा है? ये जो आप बता रहे हैं कि किसी का अगर 5 मरले है तो 10 मरले लिखा गया है, छोटा कारोबार है तो बड़ा, ये किसने लिखा? उन्होंने कोई अमला आया जी, उन्होंने बंदे मुंतखब किए ने दिहाड़ियां ते या जिस जो भी उन्होंने सिस्टम है, उन्होंने सानू आगाह भी नहीं किया और अपनी मर्जी नाल ही वो जनाब बोर्ड ला गए। क्या मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से? हमारा ये मुतालबा वज़ीर आला पंजाब से है कि ये इंसानियत के साथ ज़्यादती है, जुल्म है, तो ये काम नहीं होना चाहिए।
جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی. شہری کا یہی کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے یہ جو ستھرا پنجاب پروگرام ہے بالکل فلاپ ہو چکا ہے، اور انہوں نے حکومت پنجاب ڈپٹی کمشنر خانہ وال سے اپیل کیا کہ خدارہ ان بورڈوں پر عمل کروا کر صفائی ستھرائی بھی کروائی جائے اور جائز ٹیکسز کی شرح لگائی جائے. جی فورٹ عباس میں بنا ٹیسٹ کے موٹر سائیکل کے لائسنس کا اجرا. لرننگ لائسنس کے بعد 40 دن کی شرط ختم. پہلی دفعہ آن دی اسپاٹ لائسنس کا اجرا ممکن. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر سکیرا سے. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں فورٹ عباس میں. پنجاب بھر کی طرح فورٹ عباس میں بھی آن دی سپورٹ جو موٹر سائیکل کے لائسنس کے اجراء کا جو انعقاد ہے وہ ممکن ہو گیا ہے. اور آج خدمت مرکز فورٹ عباس میں ڈی ایس پی آفس میں اسپیشلی طور پہ وین جو ہے وہ آلریڈی فورٹ عباس کے لوگوں کے لیے لائسنس کا اجراء کر رہی ہے. اور پہلے ممکن تھا کہ 40 ڈیز کا جو ایک ٹائم ہوتا تھا لرننگ لائسنس کے بعد، وہ بھی ختم کر دیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہے سب انسپیکٹر محمد عمران. ان سے جانتے ہیں یہ ایڈیشنل آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق اور ڈی پی او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب ٹریفک واصف صاحب کے حکم کے مطابق ہم آئے ہوئے ہیں ادھر. آج انشاءاللہ ہم 20 کے قریب لائسنس بنا چکے ہیں. یہ بائک کے لائسنس جو آئی جی صاحب نے کہا کہ ان کا بغیر ٹیسٹ کے اور بغیر کوئی بھی ان کا 42 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کنڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور لائسنس ہم بنا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ادھر موجود تھے سب انسپیکٹر محمد عمران جو بتا رہے تھے کہ آئی جی کے حکامات کے مطابق ہم نے جو 40 ڈیز کا ٹائم ہے وہ ختم کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور بنا کسی ٹیسٹ کے یہ لائسنس کا اجرا ممکن ہو سکے گا. شکریہ عامر سکیرا. اور اب آگے بڑھیں اور بات کریں گے ڈیرہ غازی خان میں رکن صوبائی اسمبلی حنیف خان پتافی کا ایسا اقدام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاسز کا آغاز کروا دیا. کلاسز کا آغاز گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. رکن صوبائی اسمبلی حنیف خان پتافی کا ایسا اقدام. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاسز کا آغاز. ڈیجیٹل کلاسز کا آغاز گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کیا گیا. مظفر گڑھ میں پولیس شہداء کے بچوں کی ویلفیئر کمیشن. مظفر گڑھ کے فری لانسر انجینئر جہاں زیب کا ایسا اقدام. پولیس شہداء کے بچوں کو مفت فری لانسنگ سکھائیں گے. نجی انسٹیٹیوٹ اور پولیس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. ڈی پی او سید حسنین حیدر نے ایم او یو پر دستخط کر دیے. مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے. بالکل، مظفر گڑھ میں پولیس شہداء کے لیے ڈی پی او مظفر گڑھ اور ایک انسٹیٹیوٹ کے درمیان جو ہے ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، اور اس ایم او یو کے تحت جو ہے وہ پولیس شہداء کے بچوں کو جو ہے وہ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ فری ایجوکیشن بھی دی جائے گی ٹیکنیکل طریقے سے اور آئی ٹی کے حوالے سے. کیا ایم او یو سائن ہوا ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ انجینئر جہاں زیب موجود ہیں. ڈی پی او صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، دیگر وہاں پہ سوسائٹی کے لوگ بھی تھے. کیا ایم او یو سائن ہوا بتائیے گا ذرا. جی بیسیکلی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی جو خدمات ہیں، ہمارے شہداء جو ہماری جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے اسپیشلی ڈی پی او صاحب کی مظفر گڑھ کے لیے کافی خدمات ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا بینگ آئی ٹی ایکسپرٹ اینڈ انفلوئنسر کہ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی شہداء ہیں انہیں ہم 100% فری آف کاسٹ لے کے چلیں گے. تو یہ تمام چیزیں ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو شہداء کے بچے ہیں، اور انشاءاللہ 3 منتھس کے اندر اندر یہ باوقار روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گے. 3 مہینے کے اندر اندر ان کو ٹیکنیکل اسکل جو سکھائی جائیں گی جس سے وہ روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گے. بیسیکلی اس ایم او یو کا مقصد یہ تھا کہ شہداء کے فیملیز کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو وہ بینیفٹ دیا جائے. شکریہ میڈوگر. اور اب بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی 36ویں سالگرہ. پیپلز لائرز فورم ملتان کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد. وکلاء نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور جی اے بھٹو کے نعرے لگائے. پی ایل ایف جنوبی پنجاب کے صدر غیاث الحق شیخ نے خطاب کیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر عمران سے. جی بالکل، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ کورٹ ملتان میں موجود ہیں. پیپلز لائر فورم کے وکلاء کی جانب سے یہاں پہ جو ہے بلاول بھٹو کی 36ویں سالگرہ کا جو کیک ہے وہ کاٹا جا رہا ہے اور نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کے حوالے سے. یہاں پہ شیخ غیاث الحق جو کہ جنوبی پنجاب کے صدر ہیں پیپل لائر فورم کے، وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. آج ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی 36ویں سالگرہ پر اکٹھے ہیں. آج ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک پیغام عوام کو آپ کے توسط سے دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، آئین کی خالق پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور صرف پارلیمان کو ہی اختیار ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس نے آئین بنایا ہے وہ اس میں آئین میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے. سی او ڈی کے مطابق جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان سائن ہوئی تھی اس کے مطابق ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنی تھی، اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہم صرف یہ چاہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب چاہتے ہیں کہ جو آج ہائی کورٹ کے جج کی ایج 45 سال رکھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس کی ایج 35 سال ہونی چاہیے تاکہ تمام ینگسٹر
जो नौजवान वकला हैं वो भी हाई कोर्ट के जज बने। जनरल सेक्रेटरी आरिफ शाह डिस्ट्रिक्ट बार के मौजूद हैं, रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी में हमेशा करते हैं वकला के हवाले से, यूथ के हवाले से क्या कहेंगे आज? लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की आज हम 36वीं सालगिरह यहाँ पर मना रहे हैं PLF के प्लेटफॉर्म से। यकीनन बिलावल भुट्टो एक तामीरी सोच के हामिल लीडर हैं और कौमी लीडर हैं। जिस तरह के अभी गैसुल हक साहब ने कहा, यकीनन जो आइन में अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, हमने तो बिलावल भुट्टो साहब को और तमाम जो सियासी कायदीन हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बार में दावत दी है कि वो आएँ और जो ये आइनी तरमीम है इस पर वकला को खसूसन बरादरी को एतमाद में लें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लें और बताएं कि जो आइनी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं इसके क्या दूरअसल नतायज होंगे। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो का आज सालगिरह की तकरीब हुई और यहाँ पे उनको खराज तहसीन पेश किया गया पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं के हवाले से, भुट्टो ख़ानदान के हवाले से, और यहाँ पे नारेबाजी भी की गई है।